Assalamu alaikum. Today we are going to study PageRank algorithm. It is a very famous algorithm used by Google to rank web pages. We can represent web as a directed graph. आप हर वेब पेज को एक नोड कंसिडर कर सकते हैं और वेब पेजेस के अंदर जो लिंक्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं उनको आप एजेस कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ वेब. जब एक वेब पेज किसी दूसरे वेब पेज को पॉइंट करता है यानी किसी दूसरे वेब पेज का लिंक उसके अंदर डाला होता है तो उस लिंक के अराउंड एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है. दैट पीस ऑफ टेक्स्ट कैन बी द नेम ऑफ द पॉइंटेड वेबसाइट. उस पीस ऑफ टेक्स्ट को हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं. एंड we will make two assumptions about how anchor text plays a role in deciding if a page is relevant in a search or not. So first assumption is that hyperlink is a vote from one page to another that the second page is relevant. And the second assumption is that the anchor text, that is the actual text around this hyperlink, is a description of the target page. Consider this example. So we're trying to find IBM's homepage. So there are many pages which can be perceived as IBM's homepage, but how do we find this is the actual page? So our intuition is actually that a large number of anchor texts from different pages pointing to IBM sends a strong signal about a certain page to be the actual page of IBM. Let's say आपके पास 3 different pages हैं जिनके अंदर IBM को point किया गया है. So एक page के अंदर IBM is the anchor text while pointing to the homepage of IBM, and in second page IBM.com is used in as an anchor text. ठीक है. और third के अंदर IBM homepage is used as an anchor text. So this anchor text of this link of the IBM homepage, this is going to give us a cue that we are pointing at the IBM homepage. And if we do this for all pages जहाँ जहाँ IBM को point किया जा रहा है तो we can get a very strong cue about what's a good and relevant page. These are some other examples of anchor text. So ये सब IBM www.ibm.com को point कर रहे हैं और यहाँ पे anchor text IBM use हुआ है. यहाँ पे भी IBM apostrophe S यूज हुआ है और यहाँ पे बिग ब्लू इज द एंकर टेक्स्ट. ठीक है. और ये सब पॉइंट कर रहे हैं इस लिंक को. सो ये भी हमारी ये जो वेब पेजेस हैं दीज आर आवर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. तो हम जब इंडेक्सिंग करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो इसमें हम इस एंकर टेक्स्ट की भी वैसे ही इंडेक्सिंग करेंगे जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट की करते हैं. So when indexing a document, we'll just include anchor text from all the links pointing it to that document in the index of that document. For example, so ये जो आपके पास document है और web page, इसका जब आप index create करेंगे तो बाकी जो pages हैं जो इसको point कर रहे हैं वहाँ से हम anchor text उठा के इस document के index में add कर देंगे वो सारे एंकर टेक्स्ट को भी. अभी तक हमने एंकर टेक्स्ट के बारे में जो डिस्कस किया उससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी पेज को बहुत सारे दूसरे पेजेस पॉइंट कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट पेज इज इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट. ठीक है. लेकिन दिस गिव्स राइज टू अ सर्टेन फिनोमेना. दिस इज कॉल्ड गूगल मॉबिंग. दिस इज एक्चुअली अ साइड इफेक्ट. इसके अंदर क्या होता है कि आउटसाइड पीपल क्रिएट अ लॉट ऑफ लिंक्स pointing to a page. ठीक है. And the links have anchor text that suggest that the page is about something else. So it is easy to spam actually. How can we avoid this? So actually we can give weight to the anchor text. So जिन पेरेंट पेजेस आप कह सकते हैं जहाँ पे वो एंकर टेक्स्ट पड़ा हुआ है जो किसी स्पेसिफिक पेज को पॉइंट कर रहा है, आप उस पेरेंट पेज की अथॉरिटी चेक करें. ठीक है. कि वो पेज इटसेल्फ खुद कितना इम्पोर्टेंट है और उसकी बेस पे आप एंकर टेक्स्ट को एक वेट असाइन कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल CNN.com और Yahoo.com
के अंदर से आप कोई एंकर टेक्स्ट उठा रहे हैं तो आप उसको प्रोबेबली हाई वेट असाइन करेंगे। अभी तक हमने एंकर टेक्स्ट की एप्लीकेशन देखी है आईआर के अंदर। इट ऑल्सो हैज एप्लीकेशन इन एनएलपी। It can be used to find synonyms. So let's say we have a page that refers to Federal Reserve Bank. ठीक है, so let's say it use the anchor text Fed. अब आप देख सकते हैं कि बाकी जितने पेजेस हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक को पॉइंट कर रहे हैं उनका जो एंकर टेक्स्ट है, ठीक है, किसी ने यूज किया होगा यूएस फेडरल रिजर्व बोर्ड, किसी ने यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है, किसी ने सिर्फ फेड लिखा होगा, किसी ने फेडरल रिजर्व बैंक लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे डिफरेंट एंकर टेक्स्ट जो एक ही पेज को पॉइंट कर रहे हैं, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो यूज दिस टू फाइंड ट्रांसलेशंस ऑफ नेम्ड एंटिटीज। लेट्स से किसी एक लैंग्वेज में फेडरल रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एंकर टेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फेडरल रिजर्व बैंक को। अब किसी और लैंग्वेज के अंदर पेज लैंग्वेज का एक पेज है, ठीक है, वो भी उसका भी कोई एंकर टेक्स्ट है जो पॉइंट कर रहा है फेडरल रिजर्व बैंक को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रांसलेशंस हैं एक दूसरे की। डिफरेंट लैंग्वेजेस में फेडरल रिजर्व बैंक की जो ट्रांसलेशन है वो है, और पॉइंट्स दोनों एक ही चीज को कर रहे हैं। सो वी कैन ऑल्सो यूज दिस टू प्रोवाइड बाउंड्रीज फॉर पार्सर्स। बाउंड्रीज किस तरह से, अब ये जो एंकर टेक्स्ट है नॉर्मली इट इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि आपके सेंटेंस में एक पॉइंट के ऊपर नाउन है तो आप पार्सिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। So parsing is basically finding parts of speech in a sentence. So जब आपको पता चल गया कि इस पॉइंट के ऊपर नाउन है आपके सेंटेंस के अंदर, तो आप बाकी वर्ड्स को अब पहले से बेहतर तरीके से पार्स कर सकते हैं। So अभी तक हम जो रेलिवेंसी और रैंकिंग कर रहे थे दैट वाज बेस्ड ऑन क्वेरी डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ओवरलैप, ठीक है। लेकिन वी हैव अनदर फैक्टर नाउ दैट इज पेज पॉपुलैरिटी। सो pages which are more popular are obviously more relevant. So pages that are pointed to by lots of other pages are popular. Okay, we can use link counts as measure of static goodness. We can combine these link counts with text match score. ठीक है, सो जो प्रीवियसली हम सिर्फ टेक्स्ट ओवरलैप चेक कर रहे थे, अब उसके साथ हम एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज लिंक काउंट्स। सो वी कैन मेजर पॉपुलैरिटी ऑफ अ पेज बाय एनालाइजिंग आवर link counts. So this is how we can use link counts to measure popularity. So one way is undirected popularity. So in undirected popularity we assign a score to a page which is equal to degree. Degree is actually the sum of inlinks and the outlinks, ठीक है, जितने इसको पॉइंट कर रहे हैं किसी एक पेज को और जितनों को फिर इन रिटर्न ये पॉइंट कर रहा है उनका सम, दैट इज दिस इज अनडायरेक्टेड पॉपुलैरिटी। देन द सेकंड वे इज डायरेक्टेड पॉपुलैरिटी। इसमें जो हम पेज स्कोर यूज करते हैं दैट इज ओनली द नंबर ऑफ इन लिंक्स, यानी जो इसको पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो अभी हमने ये पहले भी देखा था कि इट इज इजी टू स्पैम link counting popularity because you can create false pages, ठीक है, उसके अंदर आप इन लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूसरे पेजेस के, तो इट इज़ comparatively easier to spam, ठीक है। तो इसको हमने फिर ये भी देखा था कि हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, how we can avoid it, we can assign a weight to each in link, ठीक है। जो भी एक इन लिंक या आउट लिंक है हम उसको एक पेज असाइन कर सकते, एक स्कोर असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन the actual authority of the original page. This is the intuition of page rank algorithm जो हमने देखना है। अभी तक हम उसकी इंट्यूशन बिल्ड कर रहे थे। अब जैसे ये जो आपके सामने डायग्राम है इसके अंदर ये काफी सारे वेब पेजेस हैं, ये जो नोड्स हैं कलर्ड नोड्स, ये आपको वेब पेजेस के बारे में बता रही हैं। अब ये जो नोड ई है इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा इन लिंक्स हैं, ठीक है, लेकिन
इसके मुकाबले में सी और अगर आप बी के देखें तो बी के भी काफी ज्यादा है। सो लेट्स लुक एट सी। सी के अंदर सिर्फ इनलिंक एक है, ठीक है, लेकिन इसको हाई इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। ये जो परसेंटेज शो हुई है इसमें, आप इसको पॉपुलैरिटी समझ सकते हैं। सो इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है कि इसका जो इनलिंक है वो एक बहुत पॉपुलर पेज से आ रहा है, विच इज बी। ठीक है। सो आप यूं समझे कि अब हमने ये जो पॉपुलैरिटी निकाली है, ये हमने इन लिंक्स को वेट असाइन करने के बाद निकाली है। सो सी इज more popular. C has a higher page score as compared to